press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hey friends, this is Ashok Riwal. I welcome you all in today's class. Friends, today we are going to discuss all the difficult word meanings of the chapter The Sound of Music. The second part, The Sehnai of Bismillah Khan. The first part video already we have made, that is in the channel. You can go and you can watch that. And I'm sure that you are going to enjoy and you are going to like the video. The second one, the part that we are going to discuss today, and all these questions are very important with the examination point of view, and I'm sure that after reading these word meanings and watching this video there won't be any difficulty to understand the chapter, because we are going to discuss the word meanings and with the message and obviously the somehow summary too of this chapter. Okay, so एक बेसिक सी समरी जिसकी हम बात करेंगे जो बिस्मिल्लाह खान के बारे में है, जो इस चैप्टर में बताई गई है. एंड वी टॉक अबाउट द मैसेज. दो हमने समरी के लिए अलग से वीडियोस बनाई हुई हैं. यू कैन गो इन द प्ले लिस्ट एंड यू कैन वॉच दैट. आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ईजी समरी, कंप्लीट समरी आपको मिलेगी, वो भी एक इंटरेस्टिंग वे में. So here the message. The story conveys the message that music is above caste, religion and boundaries. It is a unifying force which is loved and appreciated by all human beings. In short, ये कहने की कोशिश की गई है, यहाँ पे कहा गया है रादर आइमा से कि म्यूज़िक जो होता है वो किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन, किसी बाउंड्री से बाहर होता है, परे होता है, उसको आप कहीं बाउंड्रीज़ में नहीं बांध सकते, और दैट इज़ लव्ड एंड अप्रिशिएटेड बाय ऑल ह्यूमन बीइंग, ये कही गई है. और इसके सारे डिफ़िकल्ट जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, एंड लेटर ऑन विल डिस्कस ऑल द कंप्लीट समरी एंड द question answers too. Okay, so let's move towards the word meanings. The first word, emperor, means ruler. Quite easy. Emperor, E-M-P-E-R-O-R. We will discuss the pronunciation also of these words. So it's emperor, emperor, ruler, right? Next means ban, B-A-N-N-E-D, banned, right? So ban means officially prohibited, prohibited, रोकना किसी चीज़ को, officially बंद कर देना, right? नेक्स्ट वन इज़ श्रिल, S-H-R-I-L-L. श्रिल मीन्स होते तीखी आवाज़, हाई पिच्ड एंड पर्सिंग, जो बहुत तीखी आवाज़ हो, उसके बारे में कहा गया है. एंड ऑब्वियसली यू नो वेरी वेल दैट वी आर टॉकिंग हियर अबाउट शहनाई बिस्मिल्लाह खान, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. और श्रिल साउंड कही गई है किसके लिए? पहले जो पुंगी होती थी उसके लिए, जिसकी साउंड बहुत ही श्रिल होती थी, राइट. नेक्स्ट वन इज़ द जेनरिक नेम. Generic name is here a name given to a class or group as a whole. As a whole, जब आप किसी को एक name देते हो. Okay. Next one is reeded. So reeded means wind instruments which have reeds like flute, clarinet, etc. यानी कि एक reeded होता है जिसके अंदर सरकंडे टाइप है, जिसके अंदर से खोखली जो चीज़ें होती हैं उसको बोलते हैं, right. Revived means came back to life, revive करना. Professional, engaged in a specified activity as one's main paid occupation, ठीक है, rather than an as a amateur. Amateur होता है जो बिना पैसे के काम करता है, इंटरेस्ट पे करता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रोफेशनल मीन्स ऑक्यूपेशनल, जो आप किसी काम को करते हो, दैट इज नॉन एज प्रोफेशनल. नेक्स्ट वन इज इंडिस्पेंसिबल. इंडिस्पेंसिबल, विदाउट विच अ पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन. इंडिस्पेंसिबल पार्ट, एक ऐसा पार्ट जिसके बिना कोई काम हो ही नहीं सकता, दैट वी कॉल इंडिस्पेंसिबल. ओके. नेक्स्ट मीन्स कंपोनेंट. कंपोनेंट अ पार्ट ऑफ अ लार्ज होल, किसी बड़ी चीज़ का जो मेन पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग कंपोनेंट. हियर इट इज़ कंपोनेंट. नेक्स्ट वन इज़ एंसिबल. एंसिबल, एंसिबल मीन्स हियर कंसिडर्ड एज अ ग्रुप. एंसिबल मीन्स किसी भी ग्रुप को मानना, एंसिबल, राइट. नेक्स्ट वन इज़ एंशिएंट. Ancient means very old, you know very well, quite easy. State, small state. State means एक small जो state होता है उसको बोलते हैं. Ancestors, forefathers means पूर्वज. Fascinated means attracted. Accompanying means going in the company of. Accompanying, accompanied, you know well, जो किसी कंपनी में किसी के साथ जाता है. That is captivated. Captivated यहाँ पे charmed हुआ है. Means here it can be also attractive. लाइक कैप्टिवेटिव जो होता है अट्रैक्टिव भी होता है. सो यहाँ पे इसके लिए चार्म्ड, चार्म मीन्स वही फैसिनेटिंग, अट्रैक्टिव यूज़ हुआ है. नेक्स्ट वन इज हियर टेकन इन, मीन्स टेकन इन बाय
यहाँ पे दो प्रपोजिशन यूज़ हुई, एक फ्रेज बन गई है आपकी, विच मीन्स अट्रैक्टेड और चार्म्ड बाय. Maestro means here expert. Maestro means here expert. Next one is souvenirs. Souvenirs means here the things given in the memory of a place, person or event. Souvenirs स्मृति चिन्ह जिसको हम बोलते हैं, स्मृति भेंट, स्मृति चिन्ह. भाई किसी भी की मेमोरी में, किसी प्लेस की, किसी इवेंट की मेमोरी में हम कोई चीज़ किसी को देते हैं, दैट इज नोन एज souvenirs. Okay. So next one is here chartbuster. चार्टबस्टर आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज जिसको हम चार्टबस्टर बोलते हैं, विच इज़ रिकॉर्ड ब्रेकर, जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़े हों. आर्टिफिशियल अननेचुरल थिंग्स. थिक एंड फास्ट मीन्स हियर इन अ लार्ज नंबर एंड क्विक. थिक एंड फास्ट मीन्स लार्ज नंबर एंड क्विक. नेक्स्ट वन इज ऑडिटोरियम. लार्ज हॉल फॉर सीटिंग. ऑडिटोरियम एवरीबडी नोज किसको बोलते हैं, लाइक लार्ज हॉल फॉर सीटिंग. कन्फर्ड ऑन मीन्स हियर गिवन. coveted, coveted, coveted means which can be desired, जो आप चाह सकते हो, which can be desired. ओके, यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं डिस्कस. नेक्स्ट चलते हैं एक्सेस. ACCESS या SS. एक्सेस मीन्स अप्रोच. APPROACH, APPROACH, इसको लाइक दैट वी कैन ऑल्सो कॉल. मेलोडियस मीन्स ट्यूनफुल, मीठी, सुहानी, pleasant you can call it. Royalty, here the members of the royal family, right? So the members of the royal family, they are known as royalty. Impressed means felt admiration and the respect. impress हो जाना किसी चीज़ से. Considered means here regarded, regard देना, समझना किसी चीज़ को, मानना एक्चुअली. Auspicious, शुभ होता है. Favorable, promising to bring good fortune, राइट, ऐसा मैंने बताया. ऑस्पिशियस मीन्स शुभ. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज हियर स्मॉल स्टेट. एस्टेट मीन्स स्मॉल स्टेट, वी हैव डिस्कस. एंसेस्टर्स, फॉर फादर, फैसिनेटेड, अट्रैक्टेड, अकम्पनी, यहाँ तक हम देख चुके थे. कैप्टिवेटेड, चार्म्ड भी हम कर चुके हैं. थ्रू आउट, ऑल द वे थ्रू, थोरोली, ऑल द वे थ्रू. अप्रेंटिस. अप्रेंटिस मीन्स लर्नर, जो किसी के अंडर कोई काम सीखता है, दैट इज नोन एज अप्रेंटिस. नेक्स्ट वन इज हियर सॉलिट्यूड. सॉलिट्यूड मीन्स हियर लोनलीनेस, राइट. सॉलिट्यूड मीन्स लोनलीनेस. इम्प्रोवाइज, क्रिएट एंड परफॉर्म. इम्प्रोवाइज मीन्स किसी चीज़ को परफॉर्म करना, बनाना, सुधारना. रागाज, राग जिसको आप बोलते हो. पैट्रन्स ऑफ नोट इन इंडियन म्यूजिक. इंडियन म्यूजिक में जो राग होते हैं, जैसे सा रे गा मा पा ये सरगम है, ऐसे ही राग होते हैं. सो दैट इज़ नोन एज द पैट्रन्स ऑफ द नोट इन द इंडियन म्यूजिक. नेक्स्ट वन इज रिसाइटल. रिसाइटल मीन्स रिसाइट करने योग्य, परफॉर्मेंस ऑफ द म्यूजिक. डेस्टिनी मीन्स फेट, भाग्य, राइट. अब्रोड मीन्स फॉरेन लैंड. आपको पता है विदेश है ना, फॉरेन लैंड, दैट इज अब्रोड. नेक्स्ट वन इज थिक एंड फास्ट मीन्स इन लार्ज नंबर. थिक एंड फास्ट हियर means in large number and quickly. Auditorium means here large hall for sitting, कर चुके हम लोग. Conferred on means given. Courted be which can be desired. Glinting, glinting means shining. Glint, shine होता है, चमकने वाले. Rare means useful. Fondly means affectionately. Exceedingly, very much. Replication, reproducing, making an exact copy. Replica आप लोगों ने सुना होगा. म्यूजियम वगैरह में आप देखते हो तो दैट दे आर नोन एज रेप्लिका ऑफ अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, लाइक दैट. सो इट मीन्स रिप्रोड्यूसिंग और मेकिंग एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ. ओके. नेक्स्ट वन इज यर्निंग. यर्निंग मीन्स इंटेंस लॉन्गिंग, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहना. एंड नेक्स्ट वन इज यूनिक. यूनिक मीन्स अनमैच्ड. एंड डेवोट मीन्स अर्नेस्ट. डेवोट मीन्स हियर अर्नेस्ट. So these are the important word meanings of the chapter. I'm sure they are going to be very helpful to all of you, and enjoy this video and watch it. And after that I must say that read once. एक बार अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक से चैप्टर को पढ़ेंगे, so I'm sure there won't be any problem at all. And we are going to make the summary also, and that will be very beneficial. So stay tuned with the channel A. Rival's classes. If you like our videos, you can like, subscribe and put your comments also. Till then, bye bye. Stay happy, stay healthy.